Good morning, students. Welcome back to your computer class. In the previous class, we have discussed many points about HTML, how to set the picture in a center, vertically, horizontal. Between two pictures, we can write the contents of our page. So today, as I told you, we will start with a new topic, tables in HTML. How we can create table in HTML. So coming to the textbook, as what you can see, tables. HTML tables enables you to effectively present large amount of data in rows and columns. ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आप रख सकते हो in the form of rows and columns. You can also use tables to organize the overall structure of the web. आप क्या कर सकते हो, आप टेबल्स को यूज़ करके क्या डेटा उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं, इवन सारा स्ट्रक्चर वेब पेज का. For example, if you are creating a two-column table that organizes a list of navigational links, in one column the main text and image content in another. एक साइड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन है और दूसरे साइड में इमेज है. So every table is basically a rectangle containing rows and columns. ये सभी को मालूम है. The places where the columns and rows intersect are called cells. इसे तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, you all know that. Each cell can hold web page content. हर एक सेल में वेब पेज कंटेंट होता है. HTML के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हेल्पिंग एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML टेबल्स आर. ये क्वेश्चन है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML टेबल्स आर, रिमेंबर दिस, ओके. TRTHTD, table, then table row, table heading, then table data. Okay. The table tag defines the table itself. The TR defines the table row. The TH defines the table header, and TD defines the table data or the cell content. So in addition to these codes, you can assign captions and columns groups. Okay. You can also create tables within tables called nested tables. Tables के अंदर टेबल, एक टेबल है उसके अंदर एक दूसरा टेबल, फिर उसके अंदर तीसरा टेबल, ये नेस्टेड टेबल कहलाते हैं. स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए, पहले तो टेबल आएगा, फिर टेबल की रो, देन टेबल की हेडिंग, देन उसके अंदर डेटा एंड देन TR क्लोज. तो टेबल इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ एम्प्टी टैग. कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि समरी डिफाइंस द टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट गिव्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल. किसी टेबल के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें देना है तो हम समरी यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट. टेबल बॉर्डर के लिए हम बॉर्डर यूज़ करेंगे. बॉर्डर कलर के लिए टेबल का जो बॉर्डर का कलर होगा RGB नंबर में कलर नेम लिख सकते हैं. BG कलर, ऑफ कोर्स बैकग्राउंड वी कैन चेंज. अलाइनमेंट, टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. It aligns the header across the width of a cell or table across the width of a page. I hate aligning the content between the top and bottom of the cell. ऊपर और नीचे देखता है वर्टिकली और ये साइड टू साइड मीन्स हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं. उसके बाद आती है विड्थ की बात. द ब्रेथ of the table in the browser window. Width attribute can be set to a specific number of pixels to a percentage of the available. Number of pixels जितने भी हैं आप percentage में भी लिख सकते हो. Percentage value is used to ensure compatibility across a variety of displays and platforms. So pixel value is useful when fixed width is required. जब कोई fixed width आपको लगानी है, टेबल की fixed width देनी है, तो आपके लिए pixels ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि images है उसमें. Now creating a table, how will you create a table? So for that we just first take out our notepad or simply we will see as I made earlier also, we just go through it, take a page. It will take little bit time. Open with notepad and here also open. This is what we had done. So today what we are going to do, we will just put these pictures in a table. So first of all we will see to create a table before linking. So as I am taking it here and taking the example of your book itself,
सी बॉडी H1 center invoice, it is making a bill. Okay. Item name, price per unit, quantity, total price. So simple, let's see. Row, header, cell, data set. Type the data you want to appear the first row of the table and you can use the tab keys to separate each cell. The web browser will the spacing you add and type the data you want to appear to the next row table. अब इसका रिजल्ट क्या आया ये देखते हैं. रिजल्ट में अब यहाँ पे आप इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं इनवॉइस, तो ऐसे इसको मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ. चलिए, तो हमें कुछ ऐसा ही बनाना है. सबसे पहला काम करना होता है, टेबल लेना पड़ता है. टेबल हमने ले लिया. टेबल के अंदर आता है टेबल रो, TR. ठीक है, हम प्रोसेस में चलेंगे. फर्स्ट स्टेप TR. TR में क्या क्या चीज़ें आएंगी? आइटम नेम, देन टैब, प्राइस पर यूनिट, देन टैब, क्वांटिटी, देन टैब, प्राइस, टोटल. Okay, next what we'll do, close the TR tag. TR tag close हो गया. दोबारा से फिर एक रो बनानी है, तो फिर TR रो. जितनी बार आप रोज़ हैं, याद रखिए कॉलम नहीं है, रोज़ आ रहे हैं, तो जितनी बार आपको नए रो की ज़रूरत है आप TR. अब पहले में आपका आइटम नेम आएगा लैपटॉप, क्योंकि उसके डेटा फीड करना है. लैपटॉप. ओके, प्राइस पर यूनिट कितना देते हैं हम? 30,000. देन क्वांटिटी हमारी आ जाएगी 2. टोटल आ जाएगा 600,000 वॉट एवर. ओके, नेक्स्ट में TR क्लोज. फिर वापस एक TR ओपन होगा. दूसरा आइटम डेस्कटॉप, 1 लाख रुपीज़, क्वांटिटी 4 लाख. ओके, then TR close, then table close, control S, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, लैपटॉप. ये एक लाइन में आ गया अभी इस तरह से. ठीक है, तो आप देखो कि हमने क्या नहीं किया है. देखो, पहले जब हमने किया इस तरह से तो हमारा ऐसे आ रहा था. क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ रो क्रिएट की, पहली रो, दूसरी रो. लेकिन अब टेबल हेडिंग भी तो देनी है हमें इसे. तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि आइटम प्राइस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल हेडिंग, TH. फिर इस TH को हम क्लोज करेंगे. दोबारा से यहाँ पे फिर TH ओपन करेंगे. फिर यहाँ से हम TH को क्लोज करेंगे. फिर हम यहाँ पे TH को ओपन करेंगे. फिर यहाँ पर हम TH को क्लोज करेंगे. फिर से TH को ओपन किया और फिर से TH को क्लोज किया. यही सेम चीज़ हम नीचे भी करेंगे, क्योंकि ये भी हेडिंग से, तो यहाँ भी हमने TH लिया है. ठीक है, ऐसा कुछ. ठीक, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, ये जो TH है ये टेबल हेडिंग है, जो टेबल की हेडिंग रहेगी. लेकिन ये लैपटॉप, डेस्कटॉप तो हमारा टेबल का डेटा है. तो यानी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे TD. यहाँ पर हम लिखेंगे TD, देन TD क्लोज. फिर यहाँ पे हम दूसरे के लिए TD ओपन. फिर यहाँ पर TD क्लोज. फिर नेक्स्ट के लिए भी TD ओपन, देन TD क्लोज, देन TD ओपन, देन TD क्लोज. ये सेकेंड रो की बात थी. हमें थर्ड रो में आएंगे तो फिर से वही काम करना है. डेस्कटॉप के लिए भी वही चीज़ें लिखनी है. देखिए, कोडिंग थोड़ी करनी पड़ती है एक्स्ट्रा. ठीक है,
तो यहाँ पर हम टी डी क्लोज करेंगे, क्योंकि देखिए जितने बार हम डेटा लिखेंगे, जितने टेबल्स में लिखेंगे, उतने बार हमें ये करने होंगे, क्योंकि कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग लिखेंगे तभी वो इफ़ेक्ट हमें दिखेगा। हम जब कुछ लिखेंगे ही नहीं तो इफ़ेक्ट कहाँ से आएगा? क्योंकि दिखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन वो सुंदर हम बनाते हैं उसे ना, तभी तो वो सुंदर दिखता है। नहीं बनाते तो कैसे होता? टी डी क्लोज, तो टेबल का डेटा यहाँ पे क्लोज हो गया, टेबल की रो क्लोज हो गई। अब कंट्रोल एस कर देते हैं और हम देखते हैं क्या ये शो कर रहा है। देखिए अब अभी तक क्या था, वो हॉच पॉच में था। अब देखिए आइटम नेम लैपटॉप डेस्कटॉप आ गया आइटम नेम के नीचे, प्राइस पर यूनिट आ गई हमारी यहाँ पे, क्वांटिटी आ गई यहाँ पे, टोटल प्राइस आ गई यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और स्पेसिंग दे देते हैं। ओके, कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गए, लेकिन अभी इसमें बॉर्डर नहीं है, तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया, देखिए ऐसे ही आ गया, सेम ऐसे हमारा भी आया हुआ है। हमने इनवॉइस की हेडिंग नहीं बनाई है, इन्होंने इनवॉइस की हेडिंग बनाई थी H1। जैसे हम भी अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे हम डाल देंगे टेबल के पहले H1 इनवॉइस, H1 क्लोज, उसके पहले सेंटर, कंट्रोल एस, लीजिए दिख रहा है। इनवॉइस, आइटम्स नेम, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी, टोटल प्राइस। अब मैं थोड़ी सी ऊपर की चीज़ों को हटा दूँ ताकि थोड़ा सा ऊपर आ जाए, आपको दिखे क्लियरली। कंट्रोल एस, ठीक है। अभी भी आता है टीचर्स आर आवर सपोर्टिंग। ओके, लेट मी सी। ये डिलीट किया और ये डिलीट किया, कंट्रोल एस कर दिया, ये देखिए आ गया ना इस तरीके से इनवॉइस। अब इनवॉइस के बाद जब आप देख रहे हैं तो सेंटरिंग द टेबल, टेबल को सेंटर करना है। तो टेबल को सेंटर करने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपको सेंटर लिखना है। वी हैव टू राइट सेंटर एंड एट द लास्ट क्लोज द सेंटर। दैट्स इट। बाय डिफॉल्ट इट इज इन सेंटर, बाय डिफॉल्ट इट इज इन सेंटर हमारे हिसाब से, लेकिन आप सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने किया। अब है कि यू कैन ऐड बॉर्डर टू अ टेबल। यस, वी कैन ऐड बॉर्डर टू अ टेबल। In the table tag, for the table you want to display a border, write border equals to and replace with question mark with the thickness of the border। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल के अंदर, कहाँ गया हमारा टेबल, यहाँ है। टेबल के अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर इक्वल्स टू डबल मिनट कॉमा में लिख देते हैं 2 या 5 पिक्सल के हिसाब से ले लेगा। कंट्रोल एस। अब यहाँ बॉर्डर लिखा तो यहाँ बॉर्डर से क्लोज नहीं करना है, ये बॉर्डर इसका एट्रीब्यूट है, यहाँ पे सिर्फ टेबल ही क्लोज होगा। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ। ये इतनी कहानी जो लिखी है ना, इसको हटा देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, ये
ऊपर की भी कहानी को डिलीट करता हूँ, कंट्रोल, अच्छा जी ये यहाँ आ गया, कंट्रोल एस कर दिया, लीजिए ये टेबल दिख रहा है, टेबल का बॉर्डर बन गया। देखिए कुछ नहीं किया, खाली टेबल बॉर्डर लिखा इक्वल्स टू 5, अपने आप बॉर्डर क्रिएट हो गया। तो इजी है, नीचे आपको बॉर्डर से क्लोज नहीं करना है, खाली बॉर्डर मैंने दिया। देखिए जैसा आपकी बुक में है वैसा ही यहाँ भी है। नेक्स्ट है स्पैनिंग सेल्स। स्पैनिंग सेल्स में क्या है कि सेल्स को डिवाइड करना, ठीक है। मान लीजिए आपको इसके अंदर हेडिंग देनी है इनवॉइस के नीचे, जैसे यहाँ लिखा कंप्यूटर स्टोर, कंप्यूटर स्टोर के अंदर आया प्राइस पर यूनिट, ये सारी चीज़ें। तो क्या करना होगा, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि जहाँ आपने ये लिखा है TR, उस TR के अंदर आपको एक TH बना लेना है, और TH के अंदर हम लिखेंगे कॉल स्पैन, कॉलम की स्पैनिंग इक्वल्स टू 4, और उसके बाद हमने लिख दिया कंप्यूटर स्टोर, और TH को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे। अब ये तो ऐसे आ रहा है, देखिए आपका ये डेटा तो भाग गया इसमें, क्यों ऐसा हुआ, कुछ गलती होगी, आपने किया मिस्टेक। अब हमने क्या किया कि हमने TR के अंदर TH को क्लोज किया, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने दोबारा से TR को नहीं क्लोज किया, क्योंकि TR को क्लोज करना ज़रूरी है, तभी वो एक अलग हेडिंग लेगा, अलग रो बनाएगा। अब जैसे ही आपने रो कर दिया, ये देखिए ये कॉलम स्पैनिंग हो गई। जैसे हम मर्ज करते हैं, देखिए कॉलम स्पैन मर्ज हो गया, सारे कॉलम्स एक साथ आ गए, यहाँ कंप्यूटर स्टोर आ गया बस टेबल हेडिंग में, बाकी नीचे आ गए। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। अब वही चीज़ अगर आपको सेल्स का करना है, तो अभी तो कॉलम स्पैन किया, कॉलम को किया, अब रो को स्पैन करना है, तो आपका कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा। फर्क देखिए, कॉलम को स्पैन करेंगे तो ये चीज़ आपकी कॉलम वाली होगी, रो को करेंगे तो इधर। अभी मैं इसी की जगह यहाँ पे कर दूँ आइटम नेम, TH के आगे मैं कर दूँ रो इक्वल्स टू 2, कंट्रोल S। ठीक, इसमें अच्छा यहाँ है रो स्पैन, सॉरी, देखिए रो स्पैन में क्या हुआ, आइटम नेम थोड़ा बड़ा हो गया, साइड में रो हुआ, कॉलम को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही चीज़ अगर आप यहाँ से हटा के इस कॉल स्पैन की जगह रो लिख दें और सेव कर देते हैं, देखिए क्या हुआ, कंप्यूटर स्टोर, देन ये रो में आ गया कॉलम छोड़ के। तो अपने टेबल को आप जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल। रो स्पैन, कॉलम स्पैन, रो हमारा यहाँ काम करेगा और कॉलम हमारा इधर काम कर रहा है, डिपेंड करता है आप कितनी विड्थ दे रहे हो। अब टेबल में कलर डालना है, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड इफेक्ट देना है उसको। तो आपका काम है कि आप यहाँ पे जो TR है, यहाँ पे BG कलर, ओके, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, जैसे हम बॉडी में BG कलर लगाते हैं उसी तरह यहाँ पे BG कलर इक्वल्स टू $, सेव कर दीजिए अगर आपको कलर कोड नहीं मालूम है तो। देखिए ग्रीन हो गया, आपने ग्रीन लिखा, इसने इसकी बात की थी तो हमने TR में डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे BG कलर इतना 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 हो गया, हमारा TH के बाद वेयर इज दैट TH,
यहाँ पर हमने स्टार्ट नहीं किया अपना एक नया, यहाँ पे एक TR ओपन करते हैं और BG कलर इक्वल्स टू डबल एडेड कॉमा में हम रेड ब्लू लिख देते हैं, Ctrl+S एंड देन रिफ्रेश किया, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चेंजेस आप कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा एडजस्टिंग द टेबल साइज एंड cell alignment, these we will study in the next video and hope we will complete the chapter question answers also. Till then, take care, stay safe and healthy, have a nice day.